Good morning and Jai Hind students. Children, in the last class, in chapter Morphology of Flowering Plants, we have discussed about the structure of flower, a typical flower consisting calyx, corolla, androecium and gynoecium. And then we have discussed some arrangement like the arrangement of sepals and petals in their respective whorls, that is estivation. Then the arrangement of ovules inside the ovary, that is placentation, and then the arrangement of stamens and pistil also, that is androecium and gynoecium. And today we are just going to start here the uh, classification of flowers on the basis of position of gynoecium with respect to other whorl of flower, which are calyx, corolla and androecium. ध्यान से देखिएगा, गाइनोसियम के पोजीशन के आधार पर हम लोग फ्लावर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि गाइनोसियम की पोजीशन और विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हेलिक्स, करोला और स्टेमेन, इन तीनों के रिस्पेक्ट में गाइनोसियम की क्या पोजीशन है, इसके बेसिस पे फ्लावर्स को तीन तरीके में बांटा गया, जो तीन टाइप्स में बांटा गया, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। ध्यान से देखिए, हियर इन हाइपोगाइनस flowers, the gynoecium occupies the uppermost position. See here, gynoecium occupies the uppermost position and rest of the parts are just located below it. देखिए, स्टेमेन भी गाइनोसियम के नीचे, करोला भी नीचे और कैलिक्स तो नीचे है ही। तो ये तीनों ही अपेंडेजेस वर्ल जो फ्लावर्स के हैं, यह गाइनोसियम से नीचे है एंड गाइनोसियम ऑक्युपाई द हाईएस्ट पोजीशन. Such flowers are well known as hypogynous flower, children, and the ovary of such flowers are well known as superior ovary. ध्यान दीजिएगा, ऐसे फ्लावर की ओवरी क्या होगी बच्चों? सुपीरियर ओवरी होगी। आपके कोर्स में तीन फैमिली है, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। तीनों ही फैमिली में बच्चों सुपीरियर ओवरी रहेगा। गाइनोसियम, हाइपोगाइनोसियम जो है अपरमोस्ट पोजीशन ऑक्युपाई करेगा और रेस्ट ऑफ द अपेंडेजेस ऑफ फ्लावर्स आर जस्ट बीनीथ इट, and such ovary is said to be a superior ovary, and such flower is well known as hypogynous flower. Okay children, now come to the perigynous flower. Second number is perigynous flower. In perigynous flower, you are seeing here that gynoecium just present at center and rest of the part are located just on the rim of it. इसके घेरे पर, इसके रिम पर, यहाँ पर देखिए स्टेमेन, करोला और कैलिक्स, ये तीनों एक तरीके से इसको घेरे में लिए हुए हैं और गाइनोसियम ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन. सच काइंड ऑफ फ्लावर इज वेल नोन एज पेरीगाइनस फ्लावर. यहाँ पे भी देख रहे हैं एक फ्लावर और यहाँ पे दिखाई दे रहा है. गाइनोसियम ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन एंड कैलिक्स, करोला एंड स्टेमेंस जस्ट सराउंड इट and give it the central position. The gynoecium occupies the central position. Such ovary, children, listen very carefully. Such ovary are said to be as half inferior ovary. ध्यान दीजिएगा, हाइपोगाइनस फ्लावर में मैंने बताया था ओवरी सुपीरियर होता है और यहाँ पर पेरीगाइनस फ्लावर्स की ओवरी जो होती है वह हाफ इंफीरियर कहा जाता है, हाफ इंफीरियर. और जबकि यहाँ पर देखिए एपिगाइनस फ्लावर स्पेशल कंडीशन है इन विच द थैलेमस आर रिसेप्टिकल. ये देखिए जो फ्लावर का बेस है, ये थैलेमस आर रिसेप्टिकल जस्ट इमर्ज्ड एंटीरियरली इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इनक्लोज द ओवरी. ओवरी को देखिए यहाँ पर, इस ओवरी को यहाँ पर थैलेमस इनक्लोज कर लेता है और जबकि इसके ऊपर कैलिक्स, करोला और स्टेमेंस राइज्ड होते हैं. Such kind of flower is well known as epigynous flower, children, and such ovary is well known as inferior ovary. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस फ्लावर ऑफ inferior ovary, and in epigynous flower the ovary is said to be as inferior. So children, after discussing the classification of flower on the basis of position of gynoecium with respect to another part of the flower, now see the parts of flower here, which we have already seen in the earlier class, that here the androecium, the male sex organ, gynoecium, the female sex organ, corolla, the petal, in fact the colorful petal just attract the insects, and here calyx hold up the flower, and when the flower just in the form of bud, then calyx provide the mechanical support. This one is the base pedicel,
calyx, corolla, androecium and gynoecium you are seeing separately. And here see children, just I have made a classification chart of complete flower. कंप्लीट फ्लावर के पूरे पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. एक बार फ्लावर का पूरा हम लोगों ने अरेंजमेंट पढ़ लिया, कैलिक्स करोला का अरेंजमेंट पढ़ लिया, दैट इज एस्टिवेशन. ओब्यूल का ओवरी के अंदर अरेंजमेंट पढ़ लिया, दैट इज प्लेसेंटेशन. और एस्टिवेशन पढ़ने के बाद, प्लेसेंटेशन पढ़ लेने के बाद, और फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस के ऊपर जो अरेंजमेंट होता है दैट इज इन्फ्लोरेसेंस पढ़ने के बाद, अब हम लोग यहाँ पर कंप्लीट फ्लावर का यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं कि कंप्लीट फ्लावर की कौन कौन से पार्ट होते हैं. ध्यान दीजिएगा. कंप्लीट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ल्स. वन इज सेड टू बी एज नॉन इसेंशियल वर्ल्स and another is said to be as essential worlds. In the last class, I have told you already that sepals and petals, which are calyx and corolla, are said to be as accessory part, accessory organ, because they assist the flower. Whereas androecium, the male sex organ, and the gynoecium is female sex organ, are said to be as reproductive organ, because androecium male sex organ producing male gamete pollen grain, and gynoecium female sex organ producing female gamete egg cell. So children see here carefully. Non-essential whorls, calyx and corolla. कैलिक्स के यूनिट को सेपल्स बोलते हैं, करोला के यूनिट को पेटल्स बोलते हैं. सेपल्स का फंक्शन देख रहे हैं आप, टू प्रोटेक्ट इनर वर्ल्ड इन बड कंडीशन. बड कंडीशन में प्रोटेक्शन का काम करता है, बाद में फ्लावर को होल्ड अप करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. और जबकि करोला, यू नो वेरी वेल, बीइंग कलरफुल पार्ट, हेल्प इन पॉलिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इनर वर्ल्ड. इनर वर्ल्ड का प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके. नाउ सी हियर द इसेंशियल वर्ल्ड. हियर इन इसेंशियल वर्ल्ड्स we are seeing that the androecium and the gynoecium. Androecium, the male sex organ, individually said to be as stamens, and gynoecium is female sex organ, individually said to be as carpels. बच्चों, स्टेमेंस के अंदर एक बाइलोब्ड एंथर होता है. आपने पीछे डायग्राम देख चुका है. ये बाइलोब्ड एंथर और बीच में कनेक्टिव के थ्रू एक लंबा फिलामेंट जुड़ा होता है. और जबकि पिस्टिल, you know, gynoecium individually said to be as carpels or pistils, and carpels or pistils are consisting stigma, style and ovary. The uppermost adhesive part which receives the pollen grains is known as stigma. The long narrow tube in which pollen tube is germinated after pollen pistil interaction is known as style, and the basal swollen part is well known as ovary, in which various ovules are located in different lacules. So children, in this particular ray diagram in classification chart, you are seeing the complete flower and the parts of complete flower, which are non-essential whorls and essential whorls. Non-essential whorls containing consisting calyx and corolla, sepals and petals, and essential whorls consisting androecium and gynoecium, that is stamens and pistil. So children, after completing the flower portion, now come to discuss the next important topic, that is the fruits. Children, you know very well that after fertilization, if we discuss about the post fertilization event, अगर हम post fertilization event की बात करें तो we know very well that ovules are modified into seeds and ovaries are modified into fruits. और ओवरी का मॉडिफिकेशन फ्रूट्स में होता है. इसीलिए हम कोई भी फ्रूट्स देखें वो हमेशा सीड फ्रूट के अंदर ही होता है, क्योंकि ओव्यूल्स आर लोकेटेड इनसाइड द ovary. We have seen in placentation the arrangement of ovule within ovary, you know, is known as placentation. And हम लोगों ने placentation में देखा है कि ovules are located inside the ovary, and that's why children, after fertilization, seeds are located inside the fruits. So first of all, we shall discuss about the fruits, which are the modified part of ovary. Fruit is the modified part of ovary. In fact, after fertilization, fruit modifies into ovary. And here you are seeing two fruits. One is mango, scientific name Mangifera indica, and another is coconut, scientific name Cocos nucifera. ध्यान से देखिएगा, कोकोनट साइंटिफिक नेम कॉकस न्यूसीफेरा और मैंगो साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका. मैंगो इज डाइकॉट, एग्जांपल ऑफ डाइकॉट, एंड कोकोनट एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट. I have just demonstrated here two diagrams of two fruits which are dicots and monocot respectively. In mango fruit we are seeing here, this one is epicarp, जो बाहर वाला छिलका है, that is epicarp. और उसके बाद ये फ्रूट का जानते हैं आप, ये ओवरी का मॉडिफिकेशन है बच्चों. यहाँ पे भी ये ओवरी का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये मोनोकॉट है और ये डाइकॉट है.
ध्यान से समझिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा अंतर भी आप समझ जाएंगे मोनोकॉट और डाइकॉट का। देखिए यहाँ पर ये एपिकार्प और ये जो खाने वाला पोर्शन है, जो गूदा है, जो खाया जाता है आम का पोर्शन, दैट इज मीजोकार्प। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीजोकार्प वाला पोर्शन खाया जाता है बच्चों डाइकॉट फ्रूट में। और जबकि ये अंदर सीड देख रहे हैं आप, ओव्यूल्स आर मोडिफाइड इनटू सीड, और सीड के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है दैट इज एंडोकार्प। Children, this is dicot fruit, and we know that dicots are ex-albuminous, that is non-endospermous. एंडोस्पर्म अंदर नहीं भरा होगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, इसीलिए इसका छिलका जो है हार्ड और कलरफुल है, क्योंकि सीड कोट, जो सीड का कोट है, दैट विल कवर द रिजर्व फूड मटेरियल। ये सीड का जो कोट है सीड के ऊपर जो चढ़ा हुआ है, यह रिजर्व करता है फूड मटेरियल को। जबकि दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट फ्रूट, एंड वी नो वेरी वेल दैट मोनोकॉट आर एल्बुमिनस। मोनोकॉट कैसे होते हैं बच्चों? एल्बुमिनस। और जबकि एल्बुमिनस फ्रूट्स में हम देखेंगे, एल्बुमिनस बोले तो एंडोस्पर्मस, और आप नारियल पानी पीते भी हैं तो आपको पता ही है कि अंदर एंडोस्पर्म भरा होता है। डॉक्टर्स उसको एडवाइस करते हैं, बिकॉज यू नो द एंडोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन विच इज हाईली न्यूट्रिटिव, दैट इज द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। प्लांट्स के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए नरिशिंग मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल, दैट इज एंडोस्पर्म। और यहाँ पर मोनोकॉट चूंकि एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मस है, तो अंदर एंडोस्पर्म भरा होता है बच्चों। और जो बाहर का इनका छिलका है, एपिकार्प के बाद वाला, एपिकार्प के ऊपर आप देखते हैं ब्राउनिश हार्ड स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ, और उसके बाद वाला ब्राउनिश पोर्शन मीजोकार्प। और जो यहाँ पर खाया जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सीड, और ये ब्राउन वाला एंडोकार्प, जो एक और ऊपर रहता है गरी वाला एंडोकार्प, उसके अंदर व्हाइटिश पोर्शन सीड, और अंदर की ओर जो है यह एंडोस्पर्म भरा हुआ है। तो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट फ्रूट चिल्ड्रेन। Now see again here, I am just trying to elaborate the things by this diagram. अभी पीछे हम लोगों ने देखा, देखिए यहाँ पर आपने देखा इस चीज को, और यहाँ पे उसी को मेंशन करना है। तो आप देख रहे हैं ए, अब आप अपने से भी बता सकते हैं, ए व्हाट इज ए इज एपिकार्प, बी इज मीजोकार्प, एंड सी सीड, ध्यान दीजिएगा, सी सीड, एंड डी इज एंडोकार्प। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये डी देखिए एंडोकार्प है, सीड के ऊपर की हार्ड कोट, इसके बाद ये सी जो है सी डी है, दिखाई दे रहा है आपको, बी जो है यह मीजोकार्प है, मीजोकार्प, और ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, दैट इज द एपिकार्प। ओके चिल्ड्रन, और एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प को मिला के पेरिकार्प कहा जाता है बच्चों। तो इस तरीके से फ्रूट्स के दो पार्ट हो जाते हैं, एक सीड और दूसरा पेरिकार्प। और पेरिकार्प consisting three parts, three layers in fact. Outer one is known as epicarp, middle one is known as mesocarp, and inner one is known as endocarp. So in this way children, we have just illustrated the dicot and monocot fruits and its parts. As we know that fruits are the modified part of ovary. Now see the classification of fruit children here. Fruits are classified into three types: सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल फ्रूट्स। यू आर सीइंग हियर, देखिए ध्यान से देखिएगा, हो सके तो नोट भी कर लीजिए। फ्रूट्स आर ऑफ थ्री टाइप: सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट, ध्यान से देखिएगा, सिंपल फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और सिनकार्पस ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर। देखिए टेक्सोनॉमी के दो वर्ड यहाँ पे आ गए। एज यू नो दैट बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी, और टेक्सोनॉमी हम पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग फैमिली, अगले क्लास में हम लोग तीनों फैमिली को डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि मोनोकार्पेलरी यानी एक कार्पेल, सिंगल कार्पेल, अगर एक कार्पेल रहेगा तो मोनोकार्पेलरी, दो है तो बाई कार्पेलरी, तीन है तो ट्राई कार्पेलरी, अगर चार है तो टेट्रा कार्पेलरी, और पांच है तो पेंटा कार्पेलरी फ्लावर कहा जाता है बच्चों। तो ये सिंपल फ्रूट जब डेवलप होता है तो फ्रॉम मोनोकार्पेलरी फ्लावर रहेगा, एक कार्पेल रहेगा, या सिनकार्पस ओवरी। ध्यान दीजिएगा, सिनकार्पस का मतलब है कि अगर एक से ज्यादा भी कार्पेल्स हैं तो आपस में वह फ्यूज्ड है। सिन मीन्स फ्यूज्ड, सिन और एपो ये दोनों टेक्सोनॉमी के वर्ड हैं। सिन का मतलब फ्यूज्ड और एपो का मतलब फ्री। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोकार्पेलरी, एक कार्पेल होगा और या तो एक से अधिक भी होगा तो सिनकार्पस यानी फ्यूज्ड कार्पेल्स रहेंगे एक सिंगल फ्लावर के, तब उस फ्रूट को कहेंगे सिंपल फ्रूट। दैट इज वन फ्लावर वन फ्रूट, एक फ्लावर से एक ही फ्रूट बनेगा। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वह मोनोकार्पेलरी है, एक पिस्टिल या एक कार्पेल है। दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, एक ही ओवरी है, और इसीलिए केवल एक ही फ्रूट भी बनेगा। दैट इज सिंपल फ्रूट। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू द सेकंड नंबर, दैट इज एग्रीगेट फ्रूट।
एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है बच्चों? डेवलप्स फ्रॉम एपोकार्पस ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, फ्लावर तो एक ही है, लेकिन इस बार ओवरी कैसी है? एपोकार्पस है, यानी एक से अधिक कार्पेल्स हैं और वह आपस में फ्यूज भी नहीं है, फ्री हैं। मैंने अभी आपको बताया भी कि सिन और एपो टेक्सोनॉमी के वर्ड्स हैं। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड और एपो का मतलब होता है फ्री। तो यहाँ पर देख रहे, पीछे अभी आपने देखा था सिंपल फ्रूट जो है सिन कार्पस ओवरी से बनता था, और जबकि एग्रीगेट फ्रूट नाम से ही पता चल रहा है एग्रीगेट फ्रूट है, तो डेवलप फ्रॉम एपोकार्पस ओवरी, एक से ज्यादा कार्पेल्स में है और आपस में फ्यूज नहीं है, ऑफ सिंगल फ्लावर, लेकिन फ्लावर अभी भी सिंगल है, यानी वन फ्लावर मेनी फ्रूट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ अलग अलग नोट भी किया गया है। वन फ्लावर वन फ्रूट सिंपल फ्रूट, वन फ्लावर मेनी फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरा देखिए कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट। ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट जुड़ा हुआ, संयुक्त हिंदी में बोलते हैं, कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मेनी फ्लावर्स आर इंटायर इनफ्लोरेसेंस। ध्यान दीजिएगा, या तो यह कई फ्लावर से या पूरे के पूरे इनफ्लोरेसेंस। आप जानते हैं पूरे पूरे फ्लावर के अरेंजमेंट को फ्लोरल एक्सिस पर इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है बच्चों। रेसिमोज और साइमोज इनफ्लोरेसेंस हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अगर यहाँ पर मेनी फ्लावर से, कई फ्लावर से अगर डेवलप हो रहा है फ्रूट्स एक साथ में, या पूरे पूरे इंटायर इन्फ्लोरेसेंस से, तब हम उसको बोलेंगे मल्टीपल फ्रूट। ध्यान दीजिए, यानी इस बार फ्लावर कई हैं, मेनी फ्लावर्स हैं, लेकिन फ्रूट एक ही है, सिंगल फ्रूट। तो इन तीनों लाइंस को अलग से नोट कर लीजिए, आप हाईलाइट कर लीजिए इसको कि वन फ्लावर वन फ्रूट तो सिंपल फ्रूट, वन फ्लावर मेनी फ्रूट तो एग्रीगेट फ्रूट, और मेनी फ्लावर और केवल सिंगल फ्रूट एक ही फ्रूट तो उसको बोलेंगे कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट चिल्ड्रन। So children, in this way we have seen the simple aggregate or multiple fruits, composite fruits. Now see, the simple fruit is further divided into dry fruit and fleshy fruit. We have seen the examples of dry fruit and fleshy fruit earlier. फ्लेशी फ्रूट में हम लोगों ने देखा था मैंगो का एग्जांपल, हम लोगों ने देखा था बच्चों मैग्नीफेरा इंडिका, और वहां पर देखा था मीजोकार्प फ्लेशी है जो कि खाया जाता है, एडिबल पोर्शन है। और ड्राई फ्रूट्स आप जानते ही हैं, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनमें जो पेरिकार्प है वह ड्राई हो जाता है। And you know very well that pericarp consists of epicarp, mesocarp and endocarp. क्योंकि एक फ्रूट के दो भाग होते हैं बच्चों, प्लीज नोट इट। A typical fruit consists of two parts. One is pericarp and another part is seed. And pericarp is further divided into three layers, which are epicarp, mesocarp and endocarp, as you have seen earlier in the mango and coconut fruits. So children, after completing the fruit portion, now come to discuss about seeds, because you know very well that during post fertilization events ovaries are modified into fruits, whereas ovules are modified into seeds. And you know very well ovules are basically megasporangium inside egg cell are being produced, and after double fertilization embryo is being formed. तो सीड के अंदर ही एम्ब्रियो है, बेसिकली वो एम्ब्रियो का ही मॉडिफिकेशन है सीड। तो ओव्यूल पूरा पूरा मेगास्पोरेंजियम पूरा का पूरा बच्चों मॉडिफाई होकर सीड बनाता है, और जबकि ओवरी का मॉडिफिकेशन होकर फ्रूट बनता है। तो हम लोग सीड को कैसे डिफाइन करेंगे? मॉडिफाइड पोर्शन या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज वेल नोन एज सीड्स। एंड वी नो दैट सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। हम लोग किंगडम प्लांटी जब पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने देखा था कि एंजियोस्पर्म्स को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडोन्स। एंड नाउ यू आर सीइंग हियर द एग्जांपल, द डायग्राम ऑफ डाइकॉट सीड। बहुत ही क्लियर कट डायग्राम से आपको पूरा पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों। यहाँ पे ग्राम का सीड मैंने लिया है, और ग्राम के सीड में आप देख रहे हैं दो कार्टिलेडोन दिखाई दे रहा है। दो कार्टिलेडोन, दो सीड कोट, इनफैक्ट दो कार्टिलेडोन होते हैं यहाँ पे, एक कार्टिलेडोन ये और दूसरा कार्टिलेडोन ये, और बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें ऊपर की तरफ प्लम्यूल दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। प्लम्यूल grows in optimetric direction after seed germination. You know very well that during seed germination, in the presence of water, enzymatic activity takes place and plummules and radicals are being originated. Plumule grows in optimetric direction, प्रकाश की दिशा में बढ़ेगा, and forming the shoot system, whereas radical grow in geometric direction, that is the direction of gravity, towards gravity, and forming the root system. तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि रेडिकल जो है यह डाउनवर्ड जियोमेट्रिक डायरेक्शन में बढ़ रहा है और रूट सिस्टम को बना रहा है, जबकि प्लम्यूल जो है अपवर्ड
आगे की ओर बढ़ रहा है ऑप्टिमेटिक डायरेक्शन में और शूट सिस्टम को बना रहा है आफ्टर सीड जर्मिनेशन. एंड चिल्ड्रन सी हियर, this one is seed coat, this one is seed coat, and this one is hilum and micropyle. Now see what is hilum and what is micropyle. इसको भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है बच्चों. तो first of all see the hilum. Children, hilum is the whitish square. Hilum definition इसकी नोट करिएगा. Hilum is the whitish square. एक सफेद कलर का धब्बा होता है, देख भी रहे हैं आप. Hilum is the whitish square through which ovules were attached with ovary before fertilization. ध्यान से देखिएगा आप इस चीज को, क्योंकि आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले ओव्यूल्स ओवरी के अंदर ही थे और फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल का सीड मॉडिफिकेशन हो गया है, जबकि ओवरी का फ्रूट हो गया है. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये सफेद कलर का धब्बा दिखाई दे रहा है हाइलम. हाइलम इज द व्हाइटिश स्केयर थ्रू विच ओव्यूल्स वर अटैच्ड विद ओवरी बिफोर फर्टिलाइजेशन. यानी फर्टिलाइजेशन के पहले बच्चों, फर्टिलाइजेशन के पहले जो है यह ओव्यूल जिस जगह से ओवरी से अटैच था उस जगह पर जो है यह एक सफेद कलर का धब्बा बन जाता है. दैट इज वेल नोन एज हाइलम. और माइक्रोपाइल, यू नो वेरी वेल, एट द माइक्रोपाइलर एंड द स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल माइन्यूट पोर इज प्रेजेंट. दैट इज वेल नोन एज माइक्रोपाइल. At the micropylar end of ovule a small pore is located, that is micropyle. कंपटीशन में यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछता है बच्चों, असर्शन एंड रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइक्रोपाइल का फर्टिलाइजेशन के पहले और बाद क्या क्या काम होता है. तो ध्यान दीजिए, बिफोर फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइल प्रोवाइड द सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2. ये O2 और CO2 के लिए बाद में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये O2 और CO2 के डिफ्यूजन के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है. और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर माइक्रोपाइल प्रोवाइड पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ वाटर, क्योंकि जब हम सीड को पानी में डालते हैं तो माइक्रोपाइलर एंड से ही पानी अंदर की तरफ जाता है. एंड वी नो वेरी वेल दैट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंजाइमेटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस, and we are seeing here that plumule and radicals are formed, originated, and plumules grows in optimatic direction forming the shoot system, whereas radical grows in geometric direction forming the root system. Children, so this one is the dicot seed we are seeing here. Again see the single diagram of dicot seed. Two cotyledon you are seeing here, दो cotyledon दिखाई दे रहा है, and the embryonal axis plumule and radical. Okay children, now see the LS of maize grain, and you know maize, the example of monocot. In fact the scientific name is Gia maize. Scientific name is Gia maize. तो Gia maize जो है यह मोनोकाट का एग्जाम्पल है मक्का. और इसके एलएस को आप देखिए ध्यान से, मेज ग्रेन के एलएस को, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मोनोकाट्स आर एल्बुमिनस इन नेचर, दे आर एंडोस्पर्मस. तो एंडोस्पर्म यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको. That is the reserve food material, endosperm. Or plumule is protected by a hard covering that is known as coleoptile, and radical is protected by a hard covering that is well known as coleorrhiza. At the time of seed germination, children, plumule grows in optimatic direction. ये coleoptile को फाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ता है optimatic direction में और शूट सिस्टम को बनाता है, जबकि ये coleorrhiza को रप्चर करते हुए आगे की तरफ रेडिकल बढ़ता है जियोमेट्रिक डायरेक्शन में और रूट सिस्टम का निर्माण करता है. देख रहे हैं यहाँ पर ये एल्ब्यूराइन लेयर है सीड कोट के अंदर वाला, जबकि ये अंदर की ओर भरा हुआ एंडोस्पर्म है, रिजर्व फूड मटेरियल दिखाई दे रहा है. प्लम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय कोलियोराइजा. एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हेन पेरिकार्प एंड सीड कोट आर फ्यूज्ड टुगेदर सच सीड्स आर सेड टू बी एज ग्रेन. जहां पर पेरिकार्प और सीड कोट आपस में फ्यूज्ड होते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये बेसिक चीज है, बायोलॉजी का बेसिक्स है ये, कि पेरिकार्प और सीड कोट अगर आपस में फ्यूज हो तो उस सीड को हम ग्रेन बोलने लगते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एलएस ऑफ मेज ग्रेन. दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट सीड. सो सी द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड. चिल्ड्रन, द सीड कोट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फ्रूट वॉल, अलग होता है, और जबकि यहाँ पर ग्रेन में देखा आपने कंप्लीटली फ्यूज होता है पेरिकार्प के साथ. सीड कोट इज कंप्लीटली फ्यूज्ड विद पेरिकार्प. टू कार्टिलेडोन्स, सिंगल कार्टिलेडोन्स. चूंकि ये डाइकॉट एक्सेल्बुमिनस है मैंने बताया, तो एंडोस्पर्म इज एब्सेंट, और यहाँ पर एंडोस्पर्म ये प्रेजेंट है. 2 मिनट के अंदर इसको नोट कर लीजिए बच्चों. और यहाँ देख रहे हैं आप डाइकॉट सीड में देयर इज नो प्रोटेक्टिव सीथ फॉर द प्लम्यूल एंड रेडिकल. प्लम्यूल और रेडिकल के लिए कोई प्रोटेक्टिव सीथ नहीं है. और जबकि अभी आपने मेज ग्रेन में देखा कि कोलियोप्टाइल
प्लम्यूल को प्रोटेक्ट करता था, और जबकि कोलियोराइजा जो है या रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। ये चारों अंतर जो आपको नजर आ रहा है, एक बार आप डायग्राम में देख लीजिए। ये डाइकॉट का डायग्राम है, आप देख रहे हैं 2 कार्टिलेडोन है, या एक्स एल्बुमिनस है, एंडोस्पर्म नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर प्लम्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाला कोई हार्ड कवरिंग नहीं है। और जबकि आपने मेज ग्रेन में देखा कि एंडोस्पर्म यहाँ प्रेजेंट है या एल्बुमिनस है, प्लम्यूल और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड कवरिंग है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, और केवल एक कार्टिलेडोन है, सिंगल कार्टिलेडोन। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज मोनोकॉट्स, एंड सीड कोट एंड पेरिकार्प आर फ्यूज टुगेदर। सीड कोट और पेरिकार्प आपस में फ्यूज है बच्चों। सो आफ्टर डिस्कसिंग द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट, नाउ सी द कंपैरिजन। एक बार कंपैरिजन चार्ट यहाँ बनाया हूं मैं, इसको देख लीजिए। सीड 1 कार्टिलेडोन, 2 कार्टिलेडोन, मोनोकॉट में 1 और डाइकॉट में 2 है। अब देखिए रूट्स के लिए नए नए कैरेक्टर्स में लिया हूं, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए बच्चों और समझने की कोशिश करिएगा। मोनोकॉट्स में फाइब्रस रूट दैट इज एडवेंटिशियस, और डाइकॉट्स में प्राइमरी रूट टैप वाला होता है। स्टेम मोनोकॉट में बच्चों हॉलो होंगे या फॉल्स होंगे, और जबकि यहाँ डाइकॉट में स्ट्रॉन्ग स्टेम होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से अपने आप स्टेम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लिप्स में आप देखेंगे मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन, जैसा कि आप बनाना वगैरह में देखते हैं। वेनेशन हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा भी। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिनार लिप ब्लेड इज नोन एज वेनेशन। इन मोनोकॉट पैरेलल वेनेशन इज फाउंड, बनाना में हम लोगों ने देखा। और जबकि डाइकॉट्स में कैसा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें वेन्स और वेनलेट्स मिड रिप के दोनों साइड में अराइज होते हैं। फ्लावर्स मोनोकॉट्स में बच्चों जनरली इनके पेटल्स 5 या मल्टीपल ऑफ 5 के होते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 के, 5 या मल्टीपल ऑफ 5 के। दैट इज सेड टू बी एज कि वो पेंटामेरस फ्लावर। ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं बच्चों, पेंटामेरस फ्लावर। यानी मोनोकॉट्स में जनरली फ्लावर्स आर पेंटामेरस, और जबकि डाइकॉट्स में 3 या 3 के मल्टीपल में होते हैं फ्लावर्स के पेटल्स, एंड दे आर सेड टू बी एज ट्राइमेरस। तो ये डाइकॉट्स में फ्लावर यूजुअली ट्राइमेरस होते हैं, और जबकि मोनोकॉट में पेंटामेरस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए बच्चों यहाँ पर देखिए। ये वीट का एग्जांपल यहाँ लिया है, ये बनाना का एग्जांपल ये बेनियान लिया हुआ है, और इधर एग्जांपल बीन्स, मैंगो और पीनट्स के एग्जांपल लिए हुए हैं। नाउ कम टू सी द सिंबल्स ऑफ टेक्सोनॉमी। नाउ वी हैव अराइव्ड ऑन द टेक्सोनॉमी which is the peculiar feature of this chapter, that is morphology of flowering plant। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें मार्फोलॉजी के अंदर टेक्सोनॉमी पढ़ना है। 3 फैमिली की टेक्सोनॉमी, विच आर फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी। तो इन 3 फैमिली की टेक्सोनॉमी तो हम लोग अगले चैप्टर, अगले क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन इससे पहले देखिए ये जान लेना जरूरी है, यह टेक्सोनॉमी हमें प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों में से किसी एक फैमिली का टेक्सोनॉमी आपको एनुअल का जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसमें लिखने के लिए कंफर्म आएगा। तो 5 मार्क्स का ये आपका प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपके लिए या थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट। तो फैमिली फैबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी पढ़ लेने से पहले यहाँ कुछ सिंबल्स नोट किया गया है, इसको ध्यान से समझ लें आप, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बी आर ब्रैक्टिएट के लिए ब्रैक्ट होता है, रिड्यूस्ड फ्लावर को कहा जाता है बी आर। अगर है तो यहाँ पे ब्रैक्टियोलेट, और नहीं है तो इब्रैक्टिलेट कहा जाता है बच्चों। और यहाँ पर मेल का सिंबल देख रहे हैं, मेल का सिंबल, फीमेल का आप ऑलरेडी जानते हैं, बाइसेक्सुअल का आपको पता ही है। दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मींस रेडियल सिमेट्री चिल्ड्रन, एंड दिस वन इज जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मींस बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री का यहाँ पर एग्जांपल सिंबल है परसेंटेज का साइन, और एक्टिनोमॉर्फिक का है सर्किल में प्लस। ये कैलिक्स बाहर की ओर एपिकैलिक्स, के यूज होता है कैलिक्स के लिए। अगर के ब्रैकेट में है तो इसका मतलब कैलिक्स आर फ्यूज्ड। फ्यूज्ड केस को कहेंगे गैमोसेप्लस, और फ्री केस को कहेंगे पॉलीसेप्लस। सी करोला के लिए यूज होता है बच्चों। अगर करोला फ्री है तो पॉलीपेटलस, और अगर करोला यूनाइटेड है तो गैमोपेटलस। आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉली और गैमो, ये टेक्सोनॉमी का वर्ड्स है। पॉली मीन्स फ्री, गैमो मीन्स फ्यूज्ड। पॉली मीन्स फ्री, गैमो मीन्स फ्यूज्ड। सेपल्स के लिए पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस, और पेटल्स के लिए पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस। और अगर करोला 4 है, क्रूस के फॉर्म बनाते हैं, जैसा कि क्रूसीफेरी में देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं करोला क्रूसीफॉर्म। ये क्रूसीफॉर्म का सिंबल है। पी पेरियंथ को यूज करते हैं बच्चों, जबकि कैलिक्स और करोला आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ऐसा आप लिलिएसी फैमिली में देखेंगे। व्हेन कैलिक्स एंड करोला आर फ्यूज्ड टुगेदर दे आर सेड टू बी एज पेरियंथ, एंड इन द लैंग्वेज ऑफ टेक्सोनॉमी इट इज सेड टू बी एज सेपल्स। न तो पेटल्स न तो सेपल्स,
बल्कि टेपल्स। ये एंड्रोसियम के लिए अगर केवल ए है तो ये एंड्रोसियम फ्री है, स्टेमेंस फ्री, और अगर स्टेमेंस यूनाइटेड है तो ए ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए पी के ऊपर ए है, ए यहाँ एरो पी के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब एपिफिलस यानी पेरियंथ के ऊपर स्टेमेंस है, जैसा लिलिएसी फैमिली में होता है। और जबकि ये देखिए आप यहाँ करोला के ऊपर स्टेमेन है, द पेटल के ऊपर है, इसीलिए एपिपेटलस जो कि सोलेनेसी फैमिली में देखेंगे। तो इन दोनों सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पर जी देखिए गायनोसियम के लिए है बच्चों, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और गायनोसियम भी अगर फ्री है तो केवल इसी तरह से लिखेंगे, और अगर पिस्टिल यहाँ पर यूनाइटेड है तो ब्रैकेट में, जैसे कि एंड्रोसियम के लिए देखा था वैसे ही गायनोसियम के लिए भी। और जी के नीचे अगर बार लगा हुआ है दैट इज सुपीरियर ओवरी। जब मैं आपको हाइपोगाइनस फ्लावर बता रहा था आज ही की क्लास में, तब मैंने बताया था कि हाइपोगाइनस फ्लावर सुपीरियर ओवरी और एपिगाइनस फ्लावर इंफीरियर ओवरी। तो यहाँ हाइपोगाइनस फ्लावर देख रहे हैं आप, सुपीरियर ओवरी का एग्जांपल है बच्चों, जी के नीचे बार लगा हुआ है। और जब जी के ऊपर बार लगा रहेगा तब बोलेंगे इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। और जब स्टेमेन गायनोसियम के ऊपर अटैच्ड रहेगा तब बोलेंगे गायनोस्टेजियम, गायनोस्टेजियम। तो these are the symbols of taxonomy children, and you are seeing here that ब्रैक्ट के लिए BR, मेल के लिए फीमेल और बाइसेक्सुअल के लिए सिमेट्री वाले दोनों सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी आपको। एक्टिनोमार्फिक बोले तो रेडियल सिमेट्री, एंड जाइगोमार्फिक बोले तो बाइलेटरल सिमेट्री। या कैलिक्स के लिए जरूरत पड़ेगी आपको पॉलीसेपलस फ्री अगर कैलिक्स है, सेपल्स हैं, और गैमोसेपलस अगर यूनाइटेड हैं। इसी तरह अगर पेटल्स फ्री हैं तो पॉलीपेटलस, और अगर पेटल्स यूनाइटेड हैं तो गैमोपेटलस। करोला अगर 4 क्रूस के आकार में है तो क्रूसीफॉर्म बोलते हैं, CX के रूप में लिखा जाता है। ऐसा आप क्रूसीफेरी फैमिली में देखते हैं बच्चों, मस्टर्ड के फैमिली में। और मैंने बताया था अभी आपको कि लिलिएसी फैमिली में सेपल्स और पेटल्स आर फ्यूज टुगेदर एंड दे आर सेड टू बी एज पेरियंथ or tepals in the language of taxonomy. If stamens are free, androsium A, and stamens are united, then A in bracket. If androsium is attached with perianth, then epiphyllus. Perianth, you know the association of calyx and corolla. And when stamens are attached with the corolla petals, then it is said to be as epipetalous. Children, I have already told you that epiphyllus is the example of family Liliaceae, and epipetalus is the example of family Solanaceae. Now see here, if gynosium is single or gynosium is free, then we just write G, and if pistils are united, then we write G in bracket. And if G has the bar below it, then it's designate the superior ovary, that is hypogynous flower. And if the G has the bar just above it, then the ovary is inferior, that is the epigynous flower. And when stamens are attached with the gynosium, then the gynostagium. So children, these are the symbols of taxonomy which we shall discuss in the family Fabaceae, family Solanaceae and family Liliaceae. बच्चों आज के लिए होमवर्क भी रहेगा, आप इन तीनों फैमिली के बारे में, इनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे, तो अगली क्लास में आपको और ज्यादा अच्छा भी लगेगा और चीजें ज्यादा समझ में भी आएंगी। ये फैमिली फैबेसी जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये मटर का परिवार है, पल्सेस, फैमिली ऑफ पल्सेस। और ये सोलेनेसी फैमिली को कंपटीशन के बच्चे चोखा फैमिली बोलते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, चोखा फैमिली, क्योंकि पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, कोरिएंडर यानी जितने भी चीजें, आलू, बैगन, टमाटर, धनिया, चोखा की सारी इंग्रेडिएंट जो है इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज फैमिली सोलेनेसी। एंड दिस वन इज लिलिएसी फैमिली, लिली फैमिली, कॉमनली नोन एज लिली फैमिली। एंड प्याज, आप समझ रहे हैं, प्याज, लहसुन, that is garlic and onion belonging to this family Liliaceae. And aloe also, aloe vera, you know the medicinal plant aloe vera belonging to the family Liliaceae. Tulip and aloe vera belonging to the family Liliaceae. And Solanaceae, I have told you, the potato family, and Fabaceae is the family of pulses. So my dear kids, in this way we have discussed about the fruits and seeds, accomplish the chapter, and just we have to finish the rest portion, that is the family taxonomy, and we have to discuss 3 family, that is Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae. So we shall start family Fabaceae in the next class. Thank you very much.